Good morning to all students. Today we will discuss electric current. But before to start, beta, I want to clear one thing, that one thing is remaining beta in that chapter about power plant. But we will discuss this thing after completing DC motor, because it is related to motor. Clear? That's why first we will complete this chapter. Then we will discuss last topic about power plant. Clear or not, beta? Okay. So let us start our chapter electric current. Electric current का मतलब क्या होता है first? Because our chapter is electricity. So first, what is mean by electric current? ठीक है बेटा? बेटा देखो. Suppose it is a conductor on which we have applied one battery. Suppose it is a conductor and we have applied a battery. ठीक है? And you have to explain what is meant by electric current. Just see beta, by using this battery, all the electrons will move in a definite direction. All the electrons will move in a definite direction or not? Clear? So electric current means number of charges bracket में electrons flow across a conductor in a unit time is called current. Number of charges, number of electrons flow across a conductor in a unit time is called current. कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम के अंदर फ्लो होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टर. इट मीन्स बेटा इलेक्ट्रॉन इज द वी कैन से बेटा कैरियर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. कोई दिक्कत नहीं इसमें? करंट के करंट फ्लो होता है कि नहीं होता बेटा? क्लियर. इफ बेटा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो देन करंट विल फ्लो. देन टेल मी वन थिंग, दैट हाउ डिपेंड्स अपॉन टाइम. अपन को पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तो करंट फ्लो होता है, लेकिन अपन ने टाइम क्यों यूज किया साथ में? इन अ यूनिट टाइम. वाई हैव रिटन आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी और क्यू अपॉन टी. वाई हैव यूज्ड टी? टेल मी द आंसर. बिकॉज बेटा सपोज इन दिस स्ट्रक्चर वी आर टेकिंग दिस मच, suppose area. Okay beta, suppose we are taking this much area. In this area first 100 electrons are moving in 1 second. Clear? And the next example, 10 electrons are moving in 1 second. Then beta tell me, if only we will write number of electrons, then can you differentiate which one is more and which one is less? Can you differentiate? No, na. But you can see easily beta, if 10 electrons are flowing in 1 second and if 100 electrons are flowing in 1 second, there is a difference. This quantity is more as compared to this one. You can differentiate or not? If 100 electrons are flowing in 1 second, then this quantity, this current is more as compared to 10 electrons are flowing in 1 second. And we know one thing that beta, if a number of electrons are moving in a second beta is more, then more amount of current is flowing. Clear? इसका मतलब ये बेटा, how you will differentiate that this current is more and this current is smaller? If you will take time na, is it or not beta? Have you got the answer or not? Why you are taking time? Because that time defines that which amount of current is more
and which one is less. This thing is clear? Okay, so current equals to number of electrons which flow across a conductor. कंडक्टर के अक्रॉस ही होगा ना बेटा, in a unit time. Clear? Okay. Now what is the unit? What is the unit of current? Just see बेटा, NE. N equals to Q, मतलब number of charges, number of electrons. Unit of charge is coulomb. Clear? Remember this thing beta. Unit of charge is coulomb. Clear? Unit of time is second. Clear ना बेटा? Unit of time is second. लिख देता हूं मैं, unit of time, this much. And we have just given a name एम्पियर बेटा, कूलम पर सेकेंड. मतलब अपन ने कूलम पर सेकेंड को एक नाम दे दिया बेटा. वी हैव जस्ट गिवन अ नेम कूलम पर सेकेंड इक्वल्स टू एम्पियर. क्या बात समझ में आई है? फर्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट? NE अपॉन टी. Q अपॉन टी इक्वल्स टू NE अपॉन टी. इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा कूलम अपॉन सेकेंड. ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है. मतलब करंट इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोल सकते हैं? Q भी डिनोट कर सकते हैं, दैट टोटल नंबर ऑफ चार्जेस. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? ठीक है. अब इधर आओ. थोड़ी छोटी छोटी और बातें कर लेते हैं, थोड़ी छोटी छोटी, बिकॉज ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दिस. वी हैव डिस्कस्ड चार्ज. ओके बेटा, वी हैव डिस्कस्ड चार्ज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू NE. बट रिमेंबर वन थिंग, दिस डिफाइंस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. Q इक्वल्स टू NE. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब बेटा कि कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है बेटा, ठीक है, उसको अपन एक बॉडी मान रहे हैं. कोई भी एक वायर है बेटा, कोई भी एक कंडक्टर, उसको अपन एक बॉडी मान रहे हैं. उसके अंदर अपन एज्यूम करें कि टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? NE इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि करंट कैसे डिफाइन होगा बेटा? करंट डिफाइन होगा NE अपॉन टी. ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना. ये क्या शो कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर. नॉर्मली कंडक्टर अपन क्या लेते हैं? एक वायर यूज करते हैं. क्लियर ना बेटा? तो अगर वो एक बॉडी है तो उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? N मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E. E क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. क्लियर? E क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ठीक है, और इट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19. रिमेंबर दिस थिंग. क्लियर बेटा? E क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बेटा, ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. स्मॉलेस्ट, क्योंकि अपन को पता है कि कोई भी बॉडी है बेटा, अगर उसमें अपन बोलेंगे चार्जेस है, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो इलेक्ट्रॉन होगी. कोई भी बॉडी उसमें किससे मिलके बना है? चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है ना. तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? व्हाट इज द चार्ज? दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि अब अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट के. फॉर्मूला इज I इक्वल्स टू NE अपॉन टी और Q अपॉन टी. दोनों क्वेश्चन, दोनों फॉर्मूला अपन यूज करेंगे. वी विल यूज बोथ बेटा फॉर्मूलाज. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन
if 100 electrons are flowing across conductor in 10 seconds, then calculate current. Clear beta? So just see, I equals to n e upon t. Clear? Number of electrons are given 100, so I equals to 100. ऐसे बेटा this value is very 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 small. Remember this thing. Clear beta? This value is very 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 small because in a conductor number of electrons in this form. Clear? Clear beta? So 100 into 1.6. What is the magnitude of this charge? 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम ना upon t. What is t? 10 seconds. Clear beta? So this much, it's become 16 into 10 to the power -19 कूलम पर सेकेंड को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एम्पियर. एम्पियर. दिस मच करंट, बट इट इज नेग्लिजिबल करंट. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? ओके. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 10 to the power 28 number of electrons flowing in a conductor for 100 seconds, then calculate current. Clear? I equals to n 10 to the power 28 e 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम अपॉन 100. क्लियर बेटा? इधर देखो 10 to the power 26, 1.6 into 10 to the power 26 minus 19 कूलम मतलब C by S. क्या हो जाएगा बेटा? ये 1.6 into 10 to the power 7, जिसको अपन लिख सकते हैं बेटा 16 into 10 to the power 6 एम्पियर. क्लियर? दिस थिंग इज ओके और नॉट बेटा? समझ में आ गया? इसको अपन मेगा एम्पियर भी बोल सकते हैं. कुछ यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं बेटा, लेकिन चलो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन ये बस याद रख लेना कि 10 की पावर 6 को अपन क्या बोलते हैं? मेगा. ठीक है? रिमेंबर, एक दिन पूरा रख लेंगे यूनिट्स का ही समझने के लिए, ठीक है? एक दिन सिर्फ अपन सारे यूनिट समझेंगे लास्ट में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं. तो बेटा करंट इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, याद रख लेना. नेक्स्ट बोला था मैंने क्यू के भी एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो देखो एक क्वेश्चन आता है बेटा, इधर देखो. इफ in a body 1 coulomb of charge is there, then
फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? मैंने बोला था क्यू इक्वल्स टू एनी में भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जस्ट सी बेटा, इफ इन अ बॉडी 1 कूलम ऑफ चार्ज इज देयर देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी। मतलब टोटल चार्ज दे रखा है बॉडी के अंदर। थिंग इज क्लियर? टोटल चार्ज इज गिवन, देन वी नो वन थिंग, टोटल चार्ज इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू एनी। होता है कि नहीं होता है? Q इक्वल्स टू NE। क्लियर? Q is given 1 coulomb and we have to find out value of E is, I am told na beta, magnitude of charge of electron is equals to 1.6 into 10 की पावर minus 19 coulomb, coulomb से coulomb reduced, it becomes 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19। यहां से समझ आ रहा है? इज इट ओके और नॉट बेटा? अब अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको इधर ऊपर लेके जाएंगे, इट बिकम्स 10 की पावर 19 ना अपॉन 1.6। ओके, वी फर्दर रिड्यूस दिस बेटा इन दिस फॉर्म 10 into 10 to the power 18 अपॉन 1.6। क्लियर है? दिस थिंग इज क्लियर ना बेटा? रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? We just remove this point, it becomes 100 into 10 to the power 18 upon 16, that is n। इसको करेंगे बेटा डिवाइड, देखो 6 जा 96, 4 0 2 32 8 0 5। clear? The value will be 6.25 into 10 to the power 18। this is the total number of electrons in a body। अब मुझे एक समझ में आया, एक क्वेश्चन बताओ मुझे, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट में होते हैं क्या? इट इज रिटर्न 6.25, तो इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा पूरे होते हैं ना, तो बेटा आंसर इज जस्ट मल्टीप्लाई बाय 6.25 into 10 to the power 18, इट विल नॉट बी इन अ फ्रैक्शन। क्लियर? इस वैल्यू को बेटा इससे मल्टीप्लाई करोगे तब वो क्वेश्चन में फ्रैक्शन में थोड़ी ना रहेगा। क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर और नॉट बेटा? ओके, so what today, I think it is more than enough beta। in the next class we'll do further questions related to charge, number of electrons। clear beta? अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में लिखना जरूर। थैंक यू।